Hello, good morning, assalamu alaikum, and welcome to the Pavilion. You're watching eSports, 10 Sports, and the ARY Zap app. Our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. We have another double-header today, and today we're taking you to Adelaide, जहां पर आज दो मैचेस हैं. ये नजर डालते हैं मैचेस के ऊपर. पहला मैच जो आज का है वो है आपके सामने जिम्बाब्वे बामुकाबला नेदरलैंड्स. जिम्बाब्वे के लिए बड़ा ही ये अहम मैच है बिकॉज जिम्बाब्वे अब आगे प्रोसीड करना चाहता है इस पॉइंट टेबल पे और अपनी जगह को सीमेंट करना चाहता है फॉर द सेमीफाइनल्स. और दूसरा मैच इज इंडिया वर्सेस बांग्लादेश. इंडिया बामुकाबला बांग्लादेश ये भी एडलेड से है और आज दोपहर 1 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम बराह रास्त आपकी खिदमत में eSports में हम लोग पेश करेंगे. आप देख सकेंगे इसको. एंड विद दैट जरा पॉइंट टेबल पे नजर डाल लेते हैं. इस वक्त सूरत हाल क्या है इस पॉइंट टेबल के ऊपर ये आपके सामने है दोस्तों. हियर इज योर पॉइंट टेबल कमिंग अप. साउथ अफ्रीका 3 मैचेस खेल के 5 पॉइंट्स के साथ बिल्कुल टॉप ऑफ द टेबल है. इंडिया दूसरे नंबर पे है 3 मैचेस के साथ 4 पॉइंट्स पे. बांग्लादेश भी 3 मैचेस के साथ 4 पॉइंट्स पे मगर उनका नेट रन रेट कम है इंडिया से. जिम्बाब्वे 3 मैचेस के साथ 3 पॉइंट्स पे. पाकिस्तान 3 मैचेस के बाद सिर्फ 2 पॉइंट्स पे और नेदरलैंड्स 3 मैचेस के बाद 0 पॉइंट्स पे. आज अगर जिम्बाब्वे अपना मैच जीतता है जो कि should not be an issue, they will get 5 points and they will also move up. Then it is India and Bangladesh. One of those teams is going to have 6 points at the end of the day today. And we'll find out which one is it. So this is a interesting group as well. Just like वो हम group 1 देखते हैं ये भी कोई इतना वो नहीं है. Let me bring in my panelists, my guests. I've got the legends, the superstars with us here in the Pavilion. And they've served the game of cricket all their lives. They've served Pakistan really well. I've got the young and dynamic Shoaib Malik. Assalamu alaikum, Shoaib. I've got the Mr. Dependable, Mr. Reliable, Ms. Paul Haq. Assalamu alaikum, Ms. Assalamu alaikum, ji. Walaikum assalam. I've got the toe-crushing, batsman terrorizing, the wonderful Waqar. Younis, good morning and assalamu alaikum, Waqar. Good morning and assalamu alaikum. Walaikum assalam. And finally, the legend of all legends, the GOAT himself. I've got the Sultan with me, Wasim Akram. Good morning and assalamu alaikum, Wasim. Good morning and assalamu alaikum, everyone. So let's talk about the first game in Wasim, जो बाद में है आज, and that's India versus Bangladesh. Yes. Adelaide में ये गेम है और एडलेड बेसिकली बांग्लादेश हैज़ वेरी गुड मेमोरीज है. 2015 के वर्ल्ड कप में इन्होंने इंग्लैंड को इस ग्राउंड में शिकस्त दी थी क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए. I read the stats today this morning as well, not just you. And India has some bad memories in this ground. Recently टेस्ट मैच में बड़े लो टोटल में ये लोग यहाँ पर आउट हुए थे. Yeah, I suppose it's a very historic ground. It's a beautiful ground. I don't think it's a drop in pitch. यहाँ पे जो बिग बैश में एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है वो 170 है. इट्स ए इम्पॉर्टेंट गेम. अभी आपको पॉइंट टेबल दिखाई फखर ने बताया कि अगर बांग्लादेश जीती है तो वो 6 पे आ सकती है, तो चांसेस हैं. बट बांग्लादेश के कप्तान ने शाकिन में जो कल एक स्टेटमेंट दी है दैट एक्चुअली मुझे थोड़ा सा टेकन अबैक किया उसने उस स्टेटमेंट ने. एज अ स्किपर व्हेन यू have a chance to qualify for the World Cup semi-finals, and that too against one of the strongest team, one of the favorites, India, you come up with certain statements, subtle maybe, confident maybe, but not like he said Bangladesh are not here to win, India are here to win because they are the favorites. If Bangladesh win, it'll be an upset. So that shows that before even the game, the skipper, Bangladeshi skipper have sort of बैक ऑफ हिज माइंड, उसे पता है कि वो मैच नहीं जीतेंगे. बट जब भी आप किसी क्रिकेट मैच पे जाते हो इस स्टेज पे, इतने बड़े मैच पे, यू एज अ स्किपर यू गॉट टू बी पॉजिटिव और आपके माइंड में होना चाहिए कि हम ये मैच किसी भी ऑपोजिशन से जीत सकते हैं. तो इससे कोई टीम को इफेक्ट होता होगा ऐसी स्टेटमेंट से? गाइस, माय क्वेश्चन टू यू इज That's a shocker actually, to be honest. Very bizarre scene. Yeah, that's you're in the middle of the tournament और आप पिछला मैच बड़ा अच्छा जीते हैं और उसके बाद जीतने के बाद अगर ये आप कह रहे हैं कि we're not here to win or we are they are the favorites or whatever, that means you're just letting your team down and you're also worried and scared that you're not going to win. I mean, they might not win, but the thing is जब आप इस तरह के बड़े मैच में जाते हैं, बड़े टूर्नामेंट में जाते हैं, T20 क्रिकेट कि यही तो खूबसूरती है कि इसमें ये कोई पता नहीं कि कौन किसको हरा देगा. वेस्ट इंडीज़ घर बैठी हुई है इस टाइम, तो आप ये जेन में रखें. तो इट कुड बी एनीबॉडीज देयर. दे हैव डन इट इन द पास्ट. दे हैव डन इवन ये 50 ओवर क्रिकेट भी इनसे जीते हुए हैं. सो आई थिंक पॉजिटिव स्टेटमेंट वुड हैव बीन मच बेटर. देयर अ फाइन साइड. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल. और एडलेड जो कंडीशंस होंगी वो प्रॉबली बेहतर होंगी बैटिंग के लिए. तो इनकी बैटिंग ही स्ट्रगल कर रही थी, तो यू नेवर नो. सो really
really shocked with the statement. Yeah, that really is a shocker. Misbah, but let's talk about how Bangladesh and India, अगर आप head to head इनको देखें, 3 मैचेस T20 के इन्होंने खेले हुए, तीनों के तीनों जो है वो इंडिया ने जीते हुए. But Bangladesh are potentially a team that can upset any team in the world. कोई भी टीम जिस तरह T20 क्रिकेट में कुछ पता नहीं, आप एक अच्छी इनिंग किसी भी टीम को जितवा भी सकती है और एक आधी अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस किसी की तरफ से भी, जैसे तस्कीन बड़ी अच्छी फॉर्म में है, वो ऊपर से विकेट्स ले सकते हैं, इंडिया को अंडर प्रेशर कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. T20 क्रिकेट में आपने देखा है कि अपसेट्स हुए हैं. इस वर्ल्ड कप में तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा अपसेट्स हुए हैं. तो यू नेवर नो कंडीशंस कैसी होती हैं. अभी हम एडलेड को सोच रहे हैं कि एडलेड में बड़ी अच्छी बैटिंग पिच होती है. अब एडलेड में भी हो सकता है मॉइस्चर वाली पिच हो, कुछ ऐसी पिच हो, कोई भी टीम फंस जाए उसमें. तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. और बांग्लादेश के पास ऐसे प्लेयर हैं कि जो टफ टाइम दे भी सकते हैं इंडिया को. नो डाउट इंडिया इज़ वेल बैलेंस्ड, ज़बरदस्त टीम है इस टाइम, अच्छी फॉर्म में है, सारी बेसिस उनकी कवर हैं ऑलमोस्ट. बट स्टिल आई मीन ये नहीं है T20 क्रिकेट में कि अगर एक टीम का बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत अच्छी है, वही जीतेगी. कुछ भी हो सकता है. और इंडिया, बांग्लादेश ने इंडिया को हराया हुआ है. Yes. बिल्कुल 50 ओवर के वर्ल्ड कप में 2007 में और नॉकआउट किया इंडिया को बाहर. सो जब भी आई सपोज एज अ स्किपर, स्पेशली एनी टीम, यू गो इन टू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, इफ यू हैव नथिंग टू से, डोंट से. लास्ट वर्ल्ड कप में वसीम भाई, लास्ट इवन 2016 में मेरे ख्याल में तो दो स्कोर चाहिए था 3 बॉलों पर, विकेट्स इन हैंड थी और दे कुड नॉट जस्ट विन. बांग्लादेश वो जैसे ही वो पहले सेलिब्रेट करना शुरू हो गया, ऐसा लगा कि मैच जीत गए हम, तो सडनली 2 बंदे 2 गेंदों पे आउट हो गए और फिर वो मैच हार गए. बड़ी You know, I like Bangladesh cricket. I like the way they play their cricket. They're passionate. The country is, but cricket is all over Bangladesh. But I will, if I'm with their team, I will explain it to the kids. Okay, you take a wicket, you get excited, but in control. You see, I've seen Bangladesh or quite a few teams, young teams, especially जब वो आती है, वो celebration ऐसे करती है कि जैसे दोबारा सेलिब्रेशन होनी नहीं है. It should be subtle. It should be enjoy your success. Yeah. But make sure it's not overboard. Yeah, that is true. KL Rahul इंडिया की तरफ से शोएब, he's not been informed in this tournament. पहला उन्होंने 9 स्कोर किया साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 9 रन किए नेदरलैंड्स के खिलाफ, 4 पाकिस्तान के खिलाफ. So what's going on with him there? आई थिंक उनका जो प्रोसेस है रन्स बनाने वाला, मुझे ये लगता है कि वो ना थोड़े से इनडिसाइसिव हैं इन टर्म्स ऑफ डिसाइडिंग कि मैं किस तरह का खेलूं. मैं थोड़ा टाइम लेके खेलूं या मैं अपने शॉट्स खेलूं. तो आई गेस जिस ग्राउंड पे आज मैच होने जा रहा है, वहाँ पे एवरेज स्कोर वैसे ही फर्स्ट इनिंग्स का 182 है. तो आई गेस ये वेन्यू उनको सूट करना चाहिए. और दूसरा ये है, ही शुड प्ले हिज गेम, नॉट थिंकिंग कि यार मैं थोड़ा सा टाइम ले लूँ या मैं अपने बॉलर्स को टारगेट कर लूँ. ऐसा नहीं सोचना चाहिए. देखिए वो ऑन दी अप खेलते हैं और इस फॉर्मेट में तो आइडियल है आपको ऑन दी अप खेलना. आउट होना वो गेम का हिस्सा है. बट आई गेस ही इज़ गॉट एवरीथिंग इन हिम. ही शुड प्ले हिज नेचुरल गेम. जो मेरिट पे जहाँ बॉल है आप वहाँ पे खेले उसको. ये जो दोनों डिसमिसल्स हैं, दोनों बैकफुट वाले बॉलों पे आप वो देखें, वो जब आपका माइंड सेट पहले से होता है कि मैंने टाइम लेना है, वो दोनों बैकफुट पे खेलने वाले बॉलों पे वो ऑलमोस्ट फ्रंट फुट पे थे. द नेक्स्ट दोनों बॉल थे, ये देखें वो आगे आ रहे हैं, खेल रहे हैं ना, वो आगे आ रहे हैं और बॉल खेलते हैं कि जब आपको आइडिया नहीं हो रहा होता कि मैं किस टाइप का खेलूं. ये भी अगर आप बॉल देखें, ये बैकफुट पे खेलने वाला बॉल है ऑस्ट्रेलिया में. आप इसको फ्रंट फुट पे भी वो आ रहे हैं, सेटल नहीं है, और वहीं से फिर वो खेलने जा रहे हैं. जो स्लिप में भी बॉल गया वो भी देखेंगे. ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में कभी भी आप थर्ड मैन पे ओपन फेस के साथ नहीं खेल सकते. हाशिम आमला को अगर देखें, वो भी खेलते थे, या बाबर, तो वो थर्ड मैन पे भी पूरे बल्ले के साथ ऐसे दबा के खेल रहा था उसको, मार्क वुड को, और उसने 150 प्लस वालों को भी थर्ड मैन पे यूं ना गाइड करके सिंगल्स लिए हैं. लेकिन वो जो मिसबा भाई कह रहे हैं कि आप यूं नहीं खेल सकते बैट से, आपको यूं खेलना पड़ेगा. बॉल लग के जो है थर्ड मैन जाता है, आप पिच नहीं जाता फिर बॉल नीचे. हाँ, तो जब आप यूं एंगल करके खेलते हैं, सब कॉन्टिनेंट में चल जाता है एंगल करके बैट का, ये आपका बैट है यूं करके. लेकिन वहाँ पे नहीं, जहाँ बाउंस होगा वहाँ आपको यूं थर्ड मैन खेलना पड़ेगा ताकि बॉल यहाँ लगे बैट के और थर्ड मैन पे जाए. थर्ड मैन की तरफ जाए. राइट, एंड विद दैट वी गोना टेक अ ब्रेक राइट हियर ऑन द पेविलियन. आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, आवर कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप.
We'll see you on the other side of the break. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आप देख रहे हैं Sports, 10 Sports and the Airwise app. Our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. And today we've got these two games coming up. और अभी हम बात कर रहे थे जो दूसरा मैच है आज होना है इंडिया का मुकाबला बांग्लादेश, उसके हवाले से Waqar, Taskin Ahmed holds the key for Bangladesh. He's been in very good form. 2 मैन ऑफ द मैच उन्होंने इस टूर्नामेंट में उठाए हैं. 8 विकेट उन्होंने हासिल की हैं अभी तक इस टूर्नामेंट में. Right behind Sam Curran. 9. He's going to be very important to Bangladesh today. फखर भाई ये भी ले ले. क्या है ये स्टैट पूरे सारे पढ़ लिए हैं, 2 रह गए पढ़ ले. नहीं, लेकिन अब आपने यार मैं इधर सवाल कर रहा हूँ तो अब आपने ना बता के पर नया स्टैट था कि हम यूं हिलते रहे. अल्लाह की कसम आखिरी समय में पहुंच गए ने स्ट्रेट में. और अभी सिर्फ 15 मिनट हुए शो शुरू हुए. Okay, what was the question? we are going to be out of material. What was the question? Sorry. तस्कीन अहमद. Taskin Ahmed. Yeah. वो ना मैन ऑफ द मैच भी हुआ है. 2 मैचेस में मैन ऑफ द मैच हुए हैं. He has improved a lot. 8 wickets. Are we all done? If we all done, then we start. Okay. He has improved a lot, but not us. I know. Hallucination में आ जा. क्योंकि morning too early for us. Too early for us. So, yeah, Taskin, I mean, to be on a serious note, Taskin definitely much improved bowler. अभी न्यूजीलैंड में भी इसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की. बाउंसी ट्रैक्स का फुल यूज़ कर रहा है. लंबा है, एनर्जी है, शोज एग्रेशन. आई थिंक अप फ्रंट आपको कहीं ना कहीं फास्ट बॉलर से यू डू नीड दैट एग्रेशन, बिकॉज आपको पता है कि बैट्समैन जो हैं दे कमिंग आफ्टर यू, दे गोना लुक टू अटैक यू. इफ यू कैन जस्ट बॉल दोज लेंथ्स, द हार्ड लेंथ and have that kind of pace. He bowls 140 plus and see this is not easy to control these sort of shots. इसका ट्रैक रिकॉर्ड पीछे जाएंगे तो आप कहेंगे कि यार he was very wavered, he used to give way too many runs. अभी भी sometime he loses it, but early on new ball I think he is bowling really well, and that is going to be crucial for Bangladesh today, because if he gets it right and early on, क्योंकि इंडिया के ओपनर्स और ऊपर के जो बैट्समैन हैं, especially 2 openers, even Rohit Sharma, I mean he did get runs in one of the games, but वो वाली क्लास अभी दिखी नहीं है जो एक्चुअल है. So if they can get those 2 openers early, they can just sort of sneak in. Yeah, they can. वकार भाई इसको अभी इसका पीछे इंटरव्यू भी आ रहा था. पहले ये मेरे साथ भी था वहाँ पे टीम में. उस टाइम थोड़ा फिटनेस का इसका इशू था उस तरह. अभी ये काफ़ी ट्रेनिंग करके आया, बहुत फिट लग रहा है. Fit means in general overall fitness. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी की होगी. और इसने अब जिस तरह अब ये बॉलिंग कर रहा है, नॉर्मली हाइट है जैसे वकार भाई ने कहा, और हाई आर्म एक्शन है. यहाँ की कंडीशंस में एशियन या बांग्लादेश यहाँ की कंडीशंस में उतना इफेक्टिव, लेकिन वहाँ पे मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा बाउंस की वजह से भी इसको काफ़ी हेल्प मिल रही है और उस वजह से विकेटें ले रहे हैं. इवन न्यूजीलैंड में भी अच्छी बॉलिंग करता हुआ है. बिल्कुल ऐसे ही है. सूर्य हाईएस्ट विकेट टेकर in this World Cup. Good morning, Wasim. I thought I shared I think that we stat before all you said did. all of that. You are I said all of that before. on a very thin ice. Go on. And that ice is melting fast, right? Yep. It's thin and it's melting fast. Surya Kumar Yadav has been spectacular, especially in the last game when all Indian batsmen looked very ordinary. He took on the South African attack really well. और ये एडलेट से कुछ इमेजेस भी हैं आज हमारे पास. इंडिया की टीम जो है वहाँ पे ट्रेन कर रही है इन एडलेट के ग्राउंड. वाओ. They have Misbah. Your comments on that? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो लास्ट में विराट कोहली ने बात की है, व्हेन यू आर अ कीन लर्नर यू अडेप्ट क्विकली. कल भी हम बात कर रहे थे, अडेप्टेशन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है क्रिकेट में. डिफरेंट फील्ड्स में आप जाते हैं, जैसे इंडिया में आप डिफरेंट कंडीशंस आपको मिलती हैं. ऑस्ट्रेलिया की जो डायमेंशंस हैं, ग्राउंड्स, वहाँ की कंडीशंस, बाउंस टोटली डिफरेंट है. बट अडेप्ट किया है कैसे कि वो उन एरियाज़ को उन्होंने एक्सप्लोर किया है. कहाँ जो मलिक हमेशा बात करता है कि आपको पॉकेट्स पे मारने हैं शॉट्स, और वही बात वो कर रहे थे. वो नॉर्मल जो क्रिकेटिंग शॉट्स सारे मारते हैं उससे हट के खेलते हैं. वो ऐसे गैप्स में शॉटें खेलते हैं, ऐसी शॉटें उन्होंने डेवलप कर ली हैं जिसकी वजह से उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है. और फिर उसमें जो परफेक्शन है, उसमें जो मास्टरी है उनकी, कि वो ऐसी जगह पे शॉट खेलते हैं, बॉलर सरप्राइज हैं, अपोजिशन कैप्टन प्लान नहीं कर सकता. और लुक एट हिज स्ट्राइक रेट, आई मीन 170 प्लस 183 का स्ट्राइक रेट. उस नंबर पे आके
4 नंबर मुश्किल है क्योंकि सर्कल खुलता है, 2 आउट होते हैं आपके, थोड़ा बहुत टाइम दुनिया के सारे बैट्समैन लेते हैं। उस नंबर पे आके इस स्ट्राइक रेट से खेलना और इतना कंसिस्टेंटली 42.50 एवरेज, आई थिंक वो बहुत ही कुछ स्पेशल प्लेयर ही ऐसा कर सकता है। आई थिंक जो उसकी जो फियरलेस अप्रोच है ना, that is really, you know, making him play those shots. Right. But my shots question खेलने के is, लिए how can youngster have a fearless approach? Is it natural or comes from the team? सिंपल इज दैट प्लीज। go on. No, you're a batsman. Go ahead. आप पहले फिनिश नहीं, fearless approach मतलब ये होता है कि he's not scared of the failure. You know, he's happy to take that also because that's from there he learns. वसीम भाई ने उसकी थोड़ी सी ग्लिम्स पिछले दिनों भी बताई थी कि जब वो कोलकाता में था तो आपको कुछ ना कुछ ग्लिम्स वहाँ नजर आई थी। दैट इज व्हाट 8 years 10 years back. So that means he always had it in him. So all he did over the years is just mastered that. He didn't try to change it. He didn't try to think, okay, if I want to stay in the team, I have to play a certain way. I want to just do my bit first. He thinks team. He thinks, how can I just be a number one? How can I be on top of my game? And that really bring the best out of him. And और especially इस तरह की सिचुएशन में ये होता है कि अगर आपको अर्ली सक्सेस मिल जाए तो then you through. You know, sometime अगर आप शुरू में फेलियर आना शुरू हो जाए, then you start thinking, you know, scramble हो जाता है थोड़ा आपका दिमाग, तो you start thinking differently. And he got that early success, and now he's been given that license to go out and play your own way. And I think उसका एक सेंटेंस जो मैंने उसके इंटरव्यू में भी सुना शुएब, जो बड़ा इंपॉर्टेंट था, he said I want to stay one step ahead from everyone. That's why he is special. जो शॉट्स मैं मारता हूँ, जो डिफरेंट शॉट्स मारता है, कह रहा उसकी मैं प्रैक्टिस करता हूँ। अब जो जाता है वो ऑफ मिडल में आके वो जो एक शॉट ऐसे करके मारता है ये फाइन लेग पे, सो वो प्रैक्टिस करता होगा तो लगती है वो यार प्रैक्टिस को नहीं लग सकती शेबी, बिल्कुल नहीं लग सकती। या एवरी टाइम। और उसकी सबसे अच्छी चीज़ वो ये है कि ही इज़ नॉट बॉदर्ड कि टीम के प्लान्स क्या हैं, ठीक है। और आई एम श्योर जब थिंक टैंक उनका इंडियन टीम का बैठता है वो भी उसको इन्वॉल्व नहीं करते होंगे कि यार, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है हमारे सब कॉन्टिनेंट के कल्चर में कि जो परफॉर्मर हो ना उसको आप ले आते हैं मीटिंग में ले आते हैं, अच्छा तू बता क्योंकि तू परफॉर्मर है, हाँ तू दस। तो आई गेस उसकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि टीम मैनेजमेंट की भी और उसकी अपनी भी, ही इज़ नॉट बॉदर्ड कि क्या चल रहा है, ही इज़ ओनली कंसर्न कि मैंने क्या प्रैक्टिस की हुई है, मेरे क्या वर्क एथिक्स हैं, मैंने अपने गेम पे फोकस रहना है। और आई गेस इसीलिए रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन आप देखें आउट हुए हो या ना हुए हो उसकी गेम नहीं चेंज होती है। और ये की है एक बैटर के लिए कि आपका प्लान जो है ना वो चेंज नहीं होना चाहिए, आपका प्लान सेम वे रहना चाहिए। हाँ, आप थोड़ा असेस करते हैं कि क्या चल रहा है, हम चेस कर रहे हैं या पहले बैटिंग कर रहे हैं, उसको वो मद्देनज़र रखता है और अकॉर्डिंगली खेलना शुरू कर। मतलब ये तो नहीं हो सकता कि उसको कोई प्लान नहीं देते होंगे या उसको बताते नहीं होंगे। हाँ, उसको ये ज़रूर कहते होंगे ओके यू गोना गो आउट देयर एंड प्ले योर ओन वे, दैट्स व्हाटएवर यू थिंक इज़ राइट। एंड अगर उसमें तुम फेल होते हो, जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ा जो पॉइंट है इसमें, वो ये है कि अगर तुम फेल होते हो तो दैट्स ओके, वी एक्सेप्ट दैट। जब आप वो एक्सेप्ट करना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज ही प्लेज रिस्की स्ट्रोक्स ना, समटाइम ही विल गेट आउट ऑन द एंड लकीली इंडिया कि उसने जब का वो आया, ही हैज स्कोर्ड सो मेनी, एवरी गेम ही स्कोरिंग, इज एवरेजिंग रिडिकुलस। सो आई फील कि जब आपका व्हेन यू देयर and you get that freedom, but it's just that when you start sort of, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर वक्त ऐसा ही जाएगा, it will start coming down at times also, then his character will be tested, then the team's character will be tested also, and also the management. And he's a typical Mumbai boy. Yeah. You know, street smart है, very good sense of humor, very subtle sense of humor. Naughty, शरारती भी है थोड़ा टीम के साथ, अच्छा शरारती जिसे कहते हैं। So yeah, so like he said in his interview, he's really enjoying his. वो रन्स करे या ना करे, उसका वे ऑफ लिविंग इज़ द सेम। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप कोई भी स्पोर्ट जब खेलते हैं तो आपको मूव ऑन करना है। आप में गुड डेज आएंगे, बैड डेज आएंगे, लेकिन बैड डे से आपने कैसे जल्दी मूव ऑन करना है ताकि आप ट्रैक पे रहे हमेशा, वो उसमें जो है बहुत अच्छा है। मिसबा, एनी गैप्स इन इस गेम जहां पर बॉलर्स एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, इनको रोक सकते हैं, इन पे ब्रेकें लगा सकते हैं स्काई पे? अभी तक तो जो एक दो दफ़ा वो आउट हुए हैं वो यही है कि नॉर्मली
ऑफ स्टंप से बाहर निकला है बॉल क्लोज टू हिज बॉडी, जहाँ पे हाथ नहीं खुले, वहाँ पे कई दफ़ा वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ही स्ट्रॉन्ग देयर पॉइंट के ऊपर से या थर्ड मैन पे, तो वहाँ से को वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बॉल हुए हैं, तो वहाँ से वो आउट हुए हैं। वो किसी भी बैट्समैन को हो जाए तो वो आउट हो सकते हैं, बट ओवरऑल रेंज जिस तरह की है वो डिफेंस तो करने जाते ही नहीं किसी बॉल को। मुश्किल से मुश्किल बॉल पर भी ऐसी कोई शॉट बना लेते हैं कि जिस पे बॉलर अंडर प्रेशर हो जाता है। 6 से 8 मीटर वाली लेंथ है, अगर उस पर कॉन्स्टेंटली इनको बॉलिंग होगी तो ये तंग होंगे। ये क्या करते हैं बॉलर को, या कहते हैं कि मुझे ज़्यादा शॉर्ट बॉलिंग कराओ या बहुत क्लोज कराओ मेरे, लेकिन ये मजबूर करते हैं ना, एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी है उनकी। ये वाला जो बॉल है जिसके बारे में मिसबा भाई बात कर रहे हैं कि इस लेंथ पे आप रखें इनको, ये वाली जो है यहाँ पे इनको जो है कॉन्स्टेंटली जो है इनको ये इसी लेंथ पे बॉलिंग करें और वेरिएशन जो है वो ऐड करें, तो इनके अगेंस्ट चांसेस है आप इनकी विकेट ले सकें। लाइन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ा रेयर गेंद नहीं, लेकिन ये तो आइडिया हो गया ना कि इस लेंथ पे करे, रूम ना दें। ये देखें यहाँ पे इनके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आउट होने के, और हमने देखा 20वां ओवर था तो ही वाज ऑलरेडी ऑन 70। लेकिन विकी भाई मेरा कहने का मकसद ये है कि वो मजबूर करता है आपको कि या उसे आप शॉर्ट बॉलिंग करें या बहुत क्लोज करें, तो ये 6-8 मीटर वाली लेंथ विदाउट गिविंग एनी रूम, मार्जिन बहुत कम है आपके पास, क्योंकि हल्का सा रूम मिल जाता है तो वो भी गया, हल्की सी वो लेंथ आपके आगे पीछे होगी तो उसको भी नहीं छोड़ते, तो बहुत कम मार्जिन आपके लिए। All right, and with that, we have a margin for a little break right here on the Pavilion. Keep watching A Sports and 10 Sports. We'll see you on the other side. Welcome back to the Pavilion. मैं Fakhr आप देख रहे हैं Sports and Sports. Our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup, and we were talking about the India versus Bangladesh game. मगर उससे पहले एक और मैच भी है, मगर उससे पहले एक खबर भी है जो अब से कुछ देर पहले हमारे साथ यहाँ पेविलियन में वसीम अकरम ने शेयर की थी। हमारे शायद हाशमी साहब हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है। वसीम, आपने बता रहे थे कि एक ट्वीट आया उनकी तरफ से। ट्वीट मैंने अभी ट्विटर पे देखा है शायद हाशमी साहब ने, और मैंने अभी आकिब की फील्डिंग भी देखी है जो वकार ने बताई थी। वो था कि आई थिंक हिज नी इज नॉट 100% अगेन, राइट। फखर जमान ही माइट नॉट बी अवेलेबल फॉर द match, the next match for Pakistan, which is tomorrow, which is against South Africa, yeah, which is an important game for Pakistan. तो ये उस दिन is this the same knee or? अब मैं आपको उनकी पढ़ा दूं। फखर जमान twisted his knee in the last game, not available for South African game. I'm just asking, is this the same knee or? We don't know. Is it possible if you show what exactly happened that day? I don't know. Where did he twisted his knee? He was down at one stage in the game. In the game हुआ, लेकिन वो हम बाद में निकलवाते हैं footage, but उसके ऊपर हम बात करेंगे। अलग करे कोई ले ले। क्या चीज़? इसकी जिम्मेदारी अलग करे कोई ले ले। जब ये किसी भी प्लेयर के साथ ऐसा होता है कि इंजर्ड प्लेयर को आप ले जाएं और फिर उसको पूरी तरह रिहैब नहीं हुआ और वो खेले, एंड देन अब पता नहीं, आई डोंट नो वो कितनी देर के लिए उसको ये प्रॉब्लम होती है। व्हाट्स हैपनिंग? सो वन क्वेश्चन, यू गाइस आल्सो विद द टीम दिस साल डेढ़ रहे हैं दो आप लोग। सो मिसबा, एक होता है फिजियो और एक होता है डॉक्टर टीम के साथ, am I right? जी। सो व्हाट्स द फिजियो इज देयर टू ट्रीट पीपल फॉर इंजरीज और डॉक्टर इज देयर फॉर हेडेक और समथिंग एल्स? जब से कोविड की सारी चीज़ें आई हैं उस वक्त से प्रीवियसली डॉक्टर्स नहीं होते। एग्जैक्टली। तो उस कोविड की वजह से नाउ डॉक्टर आल्सो ट्रैवल्स विद द टीम। नॉर्मली फिजियो सारा कुछ देखता है, एंड देन आपका एक जो पूरा पैनल होता है इनिशियली जब आप ऑन टूर नहीं होता, ओवरऑल कोई भी रिपोर्ट्स जब होते हैं, किसी को इंजरी होती है, वो इनिशियल रिपोर्ट देता है फिजियो, सारी रिपोर्ट्स फिर अपने पैनल को भेजते हैं, एंड देन दे डिसाइड कि क्या सिचुएशन है, डिसाइड करके उसका आगे फर्दर क्या किस तरीके से उसको लेके चलना। तो आई थिंक अगर ये अभी भी ये सारा कुछ है और फिर भी इस तरह मिस हैंडलिंग हो रही है तो इट्स ये वो जो फुटेज आप कह रहे थे वकार, वो हमने निकलवाई है, आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आ रहे हैं, उसको देखिए। और वकार, यू टेक अस थ्रू। Okay, let's see what exactly happened. देखिए यहाँ लंगड़ा रहा है ये। I don't really see any. I think जब वो मुड़ा है ना, put up brakes. तब brakes जरूर लगाई हैं, और ये that's very normal. It's very. I hope it's not the same knee, because अगर वो same knee है तो that means अगर most likely it is. It is most likely the same knee. Because there is no twist. I don't. लगी है।
नहीं, आई थिंक वो ब्रेक में पहले हुआ उसको, जो उसने ब्रेक अगर आप मारी ये है थोड़ा ना। सा वापस करें तो जब ये गिरे हैं नीचे, फर्स्ट रन जो है ना, पहले जरा पूरा वो रन सिर्फ दिखाएं देख जरा। लें ये- जब वो वहां से उन्होंने बैट लगा के वापस आए। ये देखिए फर्स्ट रन देखिए, ये ये first run। लिम्प यहाँ पे हल्का सा किए, ये अभी देखिए ये लिम्प किया इसने, ये बट देयर इज नो ट्विस्ट देयर, इट्स जस्ट द ब्रेक्स लगाई हैं, एंड ब्रेक्स पे जब आप रीहैब नहीं किया होता या आपका जो नी उतनी 100% नहीं तरह होता। उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो देन देयर इज एवरी चांस कि यू विल पुट मोर स्ट्रेन ऑन इट एंड इट कैन एग्रीवेट। एंड आई हैव अ फीलिंग कि ये इस मोर ऑफ एन एग्रीवेशन ऑफ एन इंजरी जो कि पूरी तरह रीहैब नहीं हुई थी। सो दैट इज़ अ वेरी सैड न्यूज़ बिकॉज ही लुक्ड गुड, he looked actually very good yesterday. It didn't seem that he hasn't played any cricket. तो वैसे तो अच्छा लग रहा था, but that is a very bad news for us. दूसरा जो अभी हम जिक्र कर रहे थे डॉक्टर्स का, और वसीम भाई ने पूछा था, वसीम भाई डॉक्टर्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है वैसे, बिकॉज आपको तो अगर ऑस्ट्रेलिया में हो, वेस्ट इंडीज में हो, इंडिया में, वहाँ के लोकल डॉक्टर्स आपको जीपी दे देते हैं वो साथ, हेडेक या जो भी। नहीं, वो आपको वो भी नहीं ज़रूरत पड़ती, Yeah. क्योंकि एवरी ग्राउंड हैव गॉट द डॉक्टर्स देयर, देव गॉट एम्बुलेंसेज देयर, देव गॉट नर्सेज, देव गॉट एवरीथिंग देयर। तो अगर तो आपको कोई मेडिकल की ज़रूरत है, अगर आपको कोई नज़ला ज़ुकाम बुखार हुआ है, तो देयर इज़ ऑलवेज समवन देयर, एंड इवन टू एन इंजरी आपके लिए एम्बुलेंस खड़ी होती है। डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं होती है, ये दैट इज़ द जॉब ऑफ अ फिजियो, क्वालिफाइड फिजियो। और फिजियो हमारा जो है वो इज़ बीन विद द टीम फॉर अ लॉन्ग पीरियड। तो जब होता ही है कि अब ज़्यादा लोग जब हो जाते हैं फिर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। और आई हैव अ फीलिंग कि अभी जैसे सडनली ये इसको जाना चाहिए, उसको नहीं जाना चाहिए, कौन रिकमेंड करेगा इधर, एक्चुअली तो इट शुड बी द हेड कोच इज जॉब। हेड कोच शुड ओनली स्ट्रेट अवे आस्क द फिजियो कि व्हाट डू यू थिंक, डज ही नीड एक्सरे scans or whatever. When the doctor or someone else or third, fourth party jumps in now, then it becomes very difficult to make a decision for for a head coach or for a captain, because आपको चारों तरफ से you're not expert, you're not a doctor, so आपको फिर ये issues आते हैं. So I feel that there are few issues there which I think cricket board needs to address. I think communication gap है between doctor and the physio. अगर है तो ये कोच की जॉब है to sort it out. It shouldn't be that difficult. It's not a rocket science again, I'm saying. Yeah, but you know that it does go back to the Leadership? the basic question of कि हमने शाहीन शाह अफरीदी को लेके गए, उनकी भी इंजरी के ऊपर हमें क्लैरिटी नहीं है। हाँ, और फिर ये- देखिए जसप्रीत बुमराह वो भी इंजर्ड हुए थे, हाँ, लेकिन उनकी कोई मेरा ख्याल स्टेटमेंट आई थी कि वर्ल्ड कप हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं, ऑफ कोर्स ट्रॉफी जीतना इज द बिगेस्ट Yeah. थिंग, बट लुकिंग आफ्टर योर प्लेयर Your asset. मोर इम्पोर्टेंट। Yes, your asset. ठीक है, क्योंकि अगर वो सही रहेंगे, फुली फिट होंगे, तो ही कुड प्ले लाइक 3-4 वर्ल्ड कप्स और आपके पास ज़्यादा चांसेस हैं। तो आई गेस हमें थोड़ा 100% की तरफ जो है ना वो ज़्यादा रुझान हमारा होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है इसके साथ। इस वक्त हम आपको एडलेड लेकर चलते हैं, ज़रा पिच के ऊपर नजर डालते हैं। We've got the pitch report brought to you by Ensure. Right, Misbah, what do you think about that pitch? अच्छी पिच है, नॉर्मली बैटिंग पिच बड़ी ज़बरदस्त है। ये ग्रास कवर रखते हैं यहाँ पे, बट स्टिल आई मीन मज़ा आता है यहाँ बैटिंग का, और स्पेशली साइड बाउंड्रीज जिस किस्म की हैं, इतने बड़े ग्राउंड्स में खेलती हुई आ रही हैं टीमें, तो आई थिंक वहाँ पे बॉलिंग साइड को थोड़ी मुश्किल है। थोड़ा सा यहाँ पे जो आपके बॉलिंग प्लान्स हैं वो भी डिफरेंट होंगे। नॉर्मली बड़े ग्राउंड्स की वो पॉकेट्स यूज़ कर रहे थे बॉलर शॉर्ट बॉलिंग करके, यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा मेरे ख्याल में फुल बॉलिंग करेंगे सारे बॉलर्स और बैट्समैनों को सामने की तरफ ज़्यादा, ताकि बड़ी बाउंड्री पे हिट करना पड़े। ऑब्वियसली हम जो लास्ट मैच यहाँ पे खेले थे वो भी इस तरह की पिच थी, उस पर तो ठीक ठाक बाउंस था, नॉर्मली एडलेड में नहीं होता। Right. बट जैसे उन्होंने ग्रास कवर दिया, और अगर ये पूरी तरह हार्ड है पिच तो बाउंस इस पे ठीक होगा। It's a beautiful ground, one of the most beautiful grounds in the world, I reckon, as far as cricket concerned. You had good and memories it's, there. You have good memories from there. Yeah, I do. Good memories, on and off the field both. Eh? But Off the field? I was talking on field. नहीं, off the ये तो it's a beautiful city. अच्छा, Good अच्छा। food. अच्छा, And very small. Everything is, you can walk to the ground across the river. So it's very You got nice. your and first 100 there also, isn't it? first test 100 there as well. But I think generally drop-in pitch लग नहीं रही थी, drop-in pitch है। कितने ब्यूटीफुली तरीके से उन्होंने घास निकली हुई है। Just you feel like playing cricket on those grounds. Yeah, integrated there well. So 180
का यहाँ पर बिग बैश में 176 का ये टोटल वो यहाँ पर है एंटिसिपेटेड। आज ये जो दो टीमें खेल रही हैं बिटवीन नेदरलैंड्स एंड जिम्बाब्वे, यू थिंक विल बी लुकिंग एट दैट काइंड ऑफ स्कोर शोएब? आई थिंक होना चाहिए बिकॉज साइड की जो बाउंड्रीज हैं बहुत छोटी हैं एंड एज मिसबा भाई सेट के यहाँ थोड़े प्लान्स चेंज करने पड़ेंगे, बॉलर्स को थोड़ा आगे बॉल को पिच करना पड़ेगा। लेकिन आई गेस दोनों टीम्स में ना इन फॉर्म बैट्समैन बहुत कम है। जो मैचेस खेले हैं इन टीम्स ने वो मोर और लेस अराउंड 150 के खेले हैं, लेकिन डिफरेंट वेन्यू है और थोड़े प्लान्स भी डिफरेंट करने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि ये 160 वाला मैच होगा। 160 वाला होगा। पिछले मैच में वसीम जिम्बाब्वे से थोड़ा सा, जिम्बाब्वे हैड द गेम इन द पॉकेट, आई मीन दे वर ऑलमोस्ट गोइंग टू मेक इट, और अगर आज का ये मैच जीत जाते तो ये तो सेमीफाइनल में चले जाते। बट पिछले मैच में अगेंस्ट बांग्लादेश देयर वाज अ क्रूशियल मिस्टेक ऑन देयर साइड। मुज़र रब्बानी को उन्होंने सिर्फ 2 ओवर दिए थे, जो उनके मेन स्ट्राइक बॉलर हैं। या मिसबा ने उस दिन जिक्र किया उस मैच के बाद, द गाय हु इज टेकिंग विकेट्स, हु इज द हाईएस्ट विकेट टेकर, हु इज द मोस्ट डिफिकल्ट बॉलर विद हाई आर्म, जनरेट्स एक्स्ट्रा बाउंस, ब्यूटीफुल आउट स्विंग। उसने स्पेल किया, 2 ओवरों में 13 रन दे के 2 आउट किए और उसके बाद उसको ओवर नहीं दिया। सो दैट ये गलती है। लिटरली इट्स अ बिग क्राइम। इट्स अ डिफरेंस बिटवीन विनिंग एंड लूजिंग द गेम। यू हैव वन मेन बॉलर एंड यू डोंट गिव हिम द 2 ओवर्स। आई डोंट अंडरस्टैंड कि उसके पीछे क्या मंतक थी, क्या माइंडसेट थी जिम्बाब्वे के कप्तान के। इट्स बियॉन्ड मी। हो सकता है स्टिफ हो। एगर भी तो स्टिफ हो गया था। हाँ, एगर भी तो स्टिफ हो गया था। फिन ज्यादा स्टिफ भागा है उस दिन भाई। तो भाई फील्ड में जिस तरह वो मूव कर रहे थे, हो सकता है कोई हल्का फुल्का कोई निगल हो, उन्होंने बोला हो अगले मैच के लिए इसको जो है वो खाली रेस्ट मिल जाएगी। पहले खाली मुज़र रब्बानी नहीं, बाकी भी इन्होंने विलियम्स है 2 बड़े ज़बरदस्त ओवर किए, उनको भी 6 ओवर हुआ है, उनको नहीं गिराए, 2 ओवर उनको नहीं गिराए। तो कहीं ना कहीं उस मैच में थोड़ा सा वो 2 लेफ्ट हैंडर थे तो नॉन रेगुलर ऑफ स्पिनर को लेके आए, 18 रन उसको अपने मेन बॉलर्स को। और रज़ा उस दिन रज़ा से भी अच्छी बॉलिंग नहीं, उसको 35 रन हुए, बट ही कंटिन्यूड विद हिम क्योंकि विकेट टेकर था। बट वही बात है, एंड पे भी इवन रज़ा को बॉलिंग कराई है, मुज़र रब्बानी से नहीं कराई, और एट द एंड उनको वो कॉस्ट कर गया सारा कुछ। बड़ा स्मॉल मार्जिन था जिसकी वजह से वो मैच हारे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो ज़रूर डिस्कस हुआ। मिसबा अच्छे कप्तानों को मैंने देखा है कि दे थिंक बियॉन्ड 5 बॉलर्स, दे थिंक बियॉन्ड इवन 6 बॉलर्स। दे थिंक कि ओके somebody is going well, somebody is bowling really well. They change their and especially England is the team where I feel that they change the most. They अगर उन्होंने कहना है कि जी मोइन ने पहला ओवर करना है तो he will bowl, अदर वुड ने करना है या सैम ने करना है, so they just keep rotating according to what is required on that surface. वो तब होता है विकी भाई जब आपके पास रिसोर्सेज हो ना, जैसे आपके पास बैटर्स हैं तो आप 8-9 तक आपके पास बैटिंग करने वाले हैं, या अगर आपके पास बॉलर्स हैं तो 5 आपके प्रॉपर बॉलर्स हैं और 3 और करने वाले हैं, तो आपके पास इनफ रिसोर्सेज हैं। तो एज अ कैप्टन you can think of going beyond your 5th or 6th or 7th bowler. तो resources जितने आपके पास होंगे उस तरह कैप्टन जो है वो प्लान करता है. बट ऑफ कोर्स अगर आपके पास 5 बॉलर्स भी हैं then you got to bring your 6th bowler. जैसे ही आपको थोड़ा लगे कि थोड़े नए बैट्समैन खेलें तो आप जल्दी से उसका ओवर करवाएं. All right, we've got Sean Williams with us. Let's listen. There you have Sean Williams there with us. Wasim, Sikandar Raza has played a very important role in Zimbabwe's success. In fact, every time he performs, they win. पिछले मैच में उन्होंने 35 रन कंसीड किए थे और डक पे आउट हुए थे and Zimbabwe lost. How important is he going to be today? किससे पूछ रहे हैं? आपसे वसीम, आपसे पूछा. गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम. आप ही से बात कर रहा था. You went like this. हाँ वसीम तो. नहीं वो तो मैं ऐसे ही झूले दे रहा था सीट के अंदर. Yeah, they rely on him. He's in form of his life. He has evolved his game as a batsman, as a bowler. We have seen the way he bowls the carom ball, the straight one. और जब वो छुपा के आता है और आई थिंक बांग्लादेश Zimbabwe, they should be looking need to find couple of more match winners. They just rely on him a bit too much. जिस मैच में वो बॉलिंग अच्छी नहीं करता या बैटिंग नहीं करता तो जिम्बाब्वे वो मैच हार जाता है मोस्टली. So yet, but he has been phenomenal for last year in kind of this format especially. Yeah, Buzz Delighter.
he is still recovering from that hit that he took from Haris Rauf. अगर वो हमारे पास footage है तो वो ज़रूर दिखाइएगा, because that was a phenomenal delivery. और वो है, मैं सवाल ये करना चाहता था, was that helmet not good enough? What was happening there, Shoaib? नहीं, हेलमेट्स आर गुड इनफ, बट वो एक ही इम्पैक्ट ले सकते हैं बॉल का, और ये वो लिखा हुआ होता है अंदर हेलमेट्स के कि एक इम्पैक्ट के बाद चेंज द हेलमेट, गेट अ न्यू वन. तो आई गेस बॉल का भी ये है कि अब थोड़ा सा गैप तो होता ही है, लेकिन इतना गैप नहीं होता कि बॉल वहाँ से चला जाए. बट सम टाइम अगर आपका हेलमेट ढीला हो तो वो चांसेस होते हैं कि जब बॉल लगता है तो वो हेलमेट हिलता है तो वो आपकी कहीं फेस पे या सर मुझे पे या याद नेक है पे एक लग जाता है. शोएब मोहम्मद बहुत ज़बरदस्त प्लेयर पाकिस्तान के ओपनर, बड़ा उनका जब वो उनकी जो हेलमेट था ना, वो अपनी ग्रिल को, वो इतना गैप होता है ना यूजुअली, वो अपनी ग्रिल को यहाँ पे रखते थे, यूं करके, यहाँ पे इतना. So I think against England, Philip de Freitas hit him right on his nose. Yeah. So it's very important. अगर गैप आपका थोड़ा भी कम है तो बॉल अगर तेज आ रहा है तो उस गैप में से निकल सकता है. तो मेक श्योर कि गैप छोटा हो, और उसकी आदत बन जाती है. इट्स नॉट डिफिकल्ट. वकार ने न्यूजीलैंड के फिल हॉर्न्स को मारा था, वो भी गैप से ही गुजरा था ग्रिल के उनके, जब वो when he fell flat on his face. It was Faisalabad, right? Yeah. We've got that footage now. ये आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं. Look at that, Biswa. It's too quick. That's just too quick. Period. And a perfect height. Yes, ये जरा मुलाहिजा करें. बिल्कुल वो देखे ना, लेट है, बॉल निकल गया था. Wow. Just imagine this ball hitting in the 70s when there were no helmet, or अभी 60s. बैट कहीं आया ही नहीं है और बॉल सीधा ही निकल गया. और ये जो हेलमेट भी है ना, ये ग्रे निकल्स का हेलमेट है. Okay. नॉर्मली जो है ना, श्रे एंड मजूरी, ये हेलमेट ज़्यादा यूज़ होते हैं, बट ऑफ कोर्स उनका स्पॉन्सर वो है, तो ये कभी मैंने यूज़ नहीं किया, इसलिए मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि उसमें कितना गैप होता है, कितना नहीं. लेकिन गैप के लिए वो होती है ना, पहले हमारे ज़माने में तो होता है गैप बड़ा कर लो, छोटा कर लो. There you go, Delilah there. फिक्स्ड आते हैं, बिल्कुल फिक्स आते हैं जी, बिल्कुल फिक्स्ड हेलमेट आते हैं, तो आप उनको एडजस्टमेंट नहीं कर सकते आप उनकी. और एक जब वो फिल यूज इंसिडेंट, लेकिन मलिक मसला ये है कि जो इम्पैक्ट है 150 का बॉल जब लगता है, स्पेशली बैट पे भी आप देखें तो कई दफ़ा वो स्लो मोशन में दिखाते हैं तो बल्ला आलमोस्ट आपको हैंडल वैसे नहीं लगता, उसमें अगर लचक नहीं भी है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं भी है, तो वो पूरा फ्लेक्स हो जाता है. फ्लेक्स करता है, आपको नजर आता है 150 दिस इज व्हाट हैपेंस. इम्पैक्ट इतना होता है कि वो कई दफ़ा वो हेलमेट ही आपको लग जाता है, वो ग्रिल इतनी अंदर आती है कि वसीम भाई ने एक दो मारे हुए हैं बॉल जो बहुत डेंजरस लगे हैं. आई थिंक कृष्णमाचारी, श्रीकांत 17 या 24 साल के थे, और एक आपने मेरे डेब्यू में भी न्यूजीलैंड में भी लास्ट क्रिस केन्स डैड आई गॉट हिट राइट बिहाइंड, जो जिसे अब जो आप कवर होता है, जो फिल यूज के जो पीछे लगा था, बाद ही जो है ना, उन्होंने एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन निकाल दिया कि जो यहाँ पे लग सके. नो, आई गॉट हिट बाय एलन डोनाल्ड अंडर माय चिन. ये 20 स्टिचेस लगे थे मुझे. वो भी अनइवन पिच थी ओल्ड ट्रैफर्ड, एंड एलन डोनाल्ड वाज प्रॉपर व्हाइट लाइटनिंग उसे कहते थे. ही वाज क्विक, एंड दिस वाज टॉकिंग अबाउट 89 व्हेन ही वाज just coming into South African team. He was playing for Warwickshire. I think the worst one I have seen is Mike getting hit by Malcolm Marshall. On 86 tour, in West Indies. Yeah. Okay, we just hold that thought. We have to go into a break right now. Keep watching the Pavilion. See you on the other side. Welcome back to the Pavilion. मैं फखर आप देख रहे हैं Sports and Sports. Our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. We're talking about the game in hand. Adelaide में आज जो पहला मैच होने लगा है, that's Zimbabwe versus Netherlands. जरा ये पॉइंट्स टेबल पे एक दफ़ा फिर नजर डालते हैं, और मिसबा ज़रा इस ग्रुप के पॉइंट टेबल को देखें आप, और आपको if you look at that now, if Zimbabwe, excuse me, भाई ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 दिखा दीजिए प्लीज. वैसे ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिम्बाब्वे नहीं है, इसमें नहीं है जिम्बाब्वे. ये रहा जनाब. Zimbabwe gets 2 points and they get 5, so they go right ahead of India. India and Bangladesh play this, and India is the favorite team definitely. So they go to 6. They go on top of the table. But then Zimbabwe and South Africa are at 5 points each. Till tomorrow, of course, South Africa will play against Pakistan, and we don't know what's going to happen in that game. This is also an open group at this point. आपको पता नहीं है क्या हो सकता है. यहाँ पे भी अभी तक जाहिर है हर टीम को अपने आखिरी मैचेस जीतने हैं, उसके बगैर जो है वो क्वालिफिकेशन अभी तक कंफर्म नहीं है किसी की.
थोड़ा सा जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं लोग इसलिए कर रहे हैं लुकिंग एट द स्ट्रेंथ्स ऑफ द टीम। साउथ अफ्रीका और इंडिया बहुत फेवरेट लग रही हैं, अच्छी टीमें लग रही हैं, बहुत ज़बरदस्त खेल रही हैं, इन फॉर्म हैं, बाकी टीमें स्ट्रगल कर रही हैं, तो इसलिए लोग एक जिसको कह रहे हैं प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये दो टीमें जाएंगी, बाकी टीमों के अभी चांसेस नहीं हैं। बट स्टिल आई मीन एक अपसेट हुआ तो ये सारा जो है ना वो ग्रुप धर्म भरम हो ऊपर नीचे धर्म भरम हो जाएगा। फिलहाल हम लोग अपसेट हैं, लेकिन उम्मीद है कि आज बांग्लादेश मैच जीत के हमें खुश कर Right, right. Yeah, Pakistan wants that Bangladesh wins the ticket. And with that, we're going to take you back to Adelaide, where both the captains are walking out. And it's time for a toss brought to you by Dettol Soap. जी जनाब, तो एडलेड से खबर इस तरह है कि जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है एंड नीदरलैंड्स विल बी ट्राइंग टू रिस्ट्रिक्ट देम फॉर अ लो टोटल एज देयर कैप्टन वाज सेइंग। वकार, इस पिच के ऊपर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए नीदरलैंड्स के बॉलर्स की टू रिस्ट्रिक्ट जिम्बाब्वे टू अ लो टोटल? देखिए, कप्तान ने यही कहा है ना कि इट्स अ फ्रेश पिच, बारिश भी होती रही है यहाँ पे और इट्स बीन अंडर कवर एंड लॉट्स ऑफ ग्रास ऑन द पिच। सो बोथ कैप्टन्स वर हैप्पी। एक टॉस जीत के एक टॉस हार कर भी वो खुश है बिकॉज ही वांटेड टू बॉल फर्स्ट एंड सो आई थिंक देयर विल बी अ लिटिल बिट इन द पिच बिकॉज द ग्रीन टिंज जो ऊपर नज़र आ रहा था, इतना घास मैंने तो कभी एडलेड में देखा। यस, घास होता है वहाँ पे, लेकिन ड्राई घास होता है, ब्राउन ग्रास होता है। ऐसे ही है यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन है बिकॉज ऑफ द रेन अराउंड। सो यू नो द आइडिया इज टू जस्ट बॉल इन गुड एरियाज एंड ट्राई टू पिक अप अर्ली विकेट्स। अर्ली विकेट्स गोना बी की। मुझे ये लगता है कि जिम्बाब्वे ने इसलिए टॉस जीत के बैटिंग की है कि अगर कंपैरिजन करें उनकी बैटिंग और बॉलिंग का, तो उनकी बैटिंग जो है वो स्ट्रगल कर रही है। तो इस वजह से उन्होंने कहा होगा कि हम एटलीस्ट उस अपने डिपार्टमेंट पे प्रेशर डालें जो अच्छे से डील कर रहा है इन दिस टूर्नामेंट। राइट। So you think that's what their strategy looks like at this particular time? से playing 11s आ रही हैं इस वक्त हमारे पास, playing 11s की तरफ नज़र डाल लेते हैं ज़रा। playing 11 आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं। ये मिसबा, प्लीज टेक अस थ्रू जिम्बाब्वे। वही टीम ऑलमोस्ट खेल रही है उनकी। मेरे भी एयरमैन शुम्बा लास्ट मैच में पहले 6 पे खेल रहे हैं, अब 3 पे खेल रहे हैं। विलियम्स की फॉर्म वापस आई है, रज़ा से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इसमें कंट्रीब्यूट करें। ऑब्वियसली बर्ल हैं, पिंजोंगवे, चतारा, नगारवा, मजरबानी। तो आई थिंक जैसे मलिक ने भी बात की, मेनली दे डिपेंड ऑन देयर फास्ट बॉलर्स ऑन दिस पिच। इनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आके नीदरलैंड को तंग करें और नॉर्मली उनकी जो पूरे वर्ल्ड कप में बैटिंग लाइनअप प्रेशर में। बिल्कुल। नीदरलैंड्स की टीम, वकार, टेक अस थ्रू। Good side. I mean, they lost close games. They're very, very fine side. Akram is there, Deleda is there, Edward there, Vandermerv there. I think he's a very fine all-rounder. Batting भी कर लेता, थोड़ा issue था back. Oh, dog's year. I think he's a very old. Klesen, Mikra. I mean, they have got a very fine side. It's just a matter of putting all the puzzles together to just to win a game. So. अर्ली ऑन आई थिंक एज आई सेड बिफोर के इनका क्रूशल होगा कि स्टार्ट कैसा करते हैं। दोनों सिमिलर साइड्स हैं। नीदरलैंड विल फील के दे कैन बीट जिम्बाब्वे इफ दे गेट अर्ली विकेट, सो इट शुड बी अ वेरी गुड गेम। जैसे कि उनके कप्तान ने कहा है कि हमसे जो गलती हुई बैटिंग में ही हुई कि हमारी पार्टनरशिप्स नहीं लगी, एंड आई थिंक वो आज उस पर थोड़ा काम करेंगे। और प्लस आई थिंक नीदरलैंड्स को चाहिए कि लॉन्ग रन में दे नीड सम यंग प्लेयर्स कमिंग इनटू द स्क्वाड। आई थिंक वैंडमर हैव हिज टाइम, इज अबाउट 37 38। बैटिंग में वो बॉलिंग ठीक कर लेता है, बैटिंग में वो भाग रहा है, थोड़ा सा पीछे को जा रहा है। Right. और उनका जो अदर वन ऑफ द स्टीवन इज अबाउट 38 years old, the oldest player. So that's where I think associate teams have to invest in younger players. All right, and with that, it's time for another break here on the Pavilion. जब वापस आएंगे तो एक्सपर्ट प्रेडिक्शंस की तरफ चलेंगे। देख रही है स्पोर्ट्स 10 स्पोर्ट्स। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 10 स्पोर्ट्स and the news out of Adelaide is that the toss has been won by Zimbabwe. They've elected to bat first. And with that, it's time for expert predictions brought to you by Olivia. All right, जनाब, शुरू करते हैं। मिसबा, आपसे पहले, what are your predictions for the day? मैं पाकिस्तान के हिसाब से करूँ प्रेडिक्शंस। भाई आप अपने हिसाब से करें ना। आप जिम्बाब्वे, इंडिया। जिम्बाब्वे, इंडिया। वसीम, I'm thinking out of the box. Like Zimbabwe, India.
Waqar? India and Netherlands. Okay, Netherlands and India. And Shoaib? India and Zimbabwe. India and Zimbabwe. All right. Okay, so there we have it. 3 लोग जो हैं वो जिम्बाब्वे और इंडिया के लिए आर्ग्यू कर रहे हैं आप तीनों और वकार of course has gone with Netherlands and India. And those were your expert predictions brought to you by Olivia. Olivia, शुक्रिया आपका। ये हो गई जनाब हमारी एक्सपर्ट प्रेडिक्शंस। अब ये बताइए कि ये जो प्रेडिक्शंस की हैं जिसके खास तौर पे वकार आपने जो नेदरलैंड्स वाली प्रेडिक्शन की है क्यों की है? मेरी मर्जी। तो वो तो अच्छी बात है। देखे ना मैं दिस इज हाउ आई उन्होंने सिर्फ हमसे एग्री नहीं करना बस। आपसे नहीं करना खास तौर पे। देखें हर बंदे वो दिन चीजें सही हो जाएंगी जब ये 2 लोग एक पेज पे आ गए ना। हम दोनों 2 साल कड्डे ने यार की गल्ला कर रहे हैं। कड्डे ने ना? नहीं, मैं गल हो रही है सेम पेज पे आने वाली। सेम पेज पे हैं। आई मीन उनकी अपनी थिंकिंग है, मेरी अपनी थिंकिंग है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस शो दैट वी 4 experts, we think differently and we see the game differently, and people analyze on that, you know, what is right, what is wrong, and they take a lot of pluses and minuses, and which is great. I mean, I'm enjoying it. That's great. मैंने तो ये दोनों टीमें इसलिए पिक की, मेरी प्रेडिक्शंस टोटली गलत हो रही है। हाँ, अगेंस्ट जा रही। चाह रहा हूँ ये दोनों पिक किए, दोनों हार जाएं तो कोई पाकिस्तान का चांस जो है ना That's interesting. The most successful one has been Shoaib Malik, by the way. So far, Shoaib, your आपके जो है ना एग्रीगेट सबसे अच्छा है ऑफ गेटिंग द प्रेडिक्शंस। क्या था, जापानी तोता था इनके पास? हाँ, तो जापान गया था छुट्टी टाइम नाउ ऑफ कोर्स। उसको अपने गेम प्लान से नहीं हट रहा। काफी टाइम से यहाँ रहना शुरू हुआ है तोता। ऐथो वाली हरकतें शुरू कर दी। मुझे लग रहा है कि बीच में ना दुबई गया है ना ये तोता उधर ही छोड़ा है। मुझे लग रहा है कि प्रेडिक्शन आज शाम को पता लगेगा कि लेके आएंगे नहीं। नहीं ले गया यार। चले वसीम, तो फिर आप बताएं कैसी गुजर रही है आपके पास? इस तरह तो टाइम नहीं गुजरेगा। नहीं, इस तरह नहीं गुजरेगा। तो you have to come out with something. No, but you said, by the way, you have still not given us a reason why you think Netherlands will win. वो I think Netherlands will win, which I honestly feel that ये पिच जो है क्योंकि थोड़ा सा अंडरकवर रैग ग्रीन लग रहा है मुझे। एडलेड की पिच वैसे तो नॉर्मली बैटिंग के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो नज़र आ रहा है वो ऐसा लग रहा है कि जो अर्ली ऑन इस गेंद थोड़ा हिलेगा। और अगर अर्ली ऑन नेदरलैंड के जो फास्टर बॉलर हैं दे आर प्रीटी गुड। सो अगर उन्होंने अर्ली ब्रेक थ्रू दे दिया फर्स्ट 6 पावर प्ले के ओवर हैं, अगर वो अच्छे कर गए तो देन जिम्बाब्वे के लिए कोई इतना आसान नहीं होगा। इसलिए दैट्स द रीजन। Alright, okay. So that there is reason to that. Okay, fair enough. That makes sense. ये images आ रही हैं इस वक्त एडलेड से आपके पास teams getting ready for this game. Netherlands के लिए आगे जाने का मिसबा कोई चांस नहीं है। So they अभी नहीं वो है अभी उनका जाने का कोई चांस नहीं है। Does that make them a dangerous side because they have nothing to lose right now? कोशिश करेंगे वो कि एटलीस्ट वो जाते जाते एक मैच अच्छा खेल के जाएं, अच्छी मेमोरीज लेके जाएं। एंड ऑब्वियसली दे आर ट्राइंग। वो कोशिश जो वकार भाई की बात है वो सही है। कोशिश यही कर रहे हैं कि हम लोएस्ट टोटल पे, और मुझे लगता है कि उनकी टीम की जो नज़र आ रही कैपेसिटी वो 120-25 इससे ज़्यादा वो उनसे बैटिंग में हो ही नहीं रहा उसको। All right, fair enough. Thank you very much, Wasim. Thank you, Misbah. Thank you, Waqar. Thank you, Shoaib. I will see you at the end of the day after the 2 games. And before I sign off, it's a special day today. It's the 2nd of November. And it's a special day because a very special person, my son, Raid Alam, turns 11 today. So, son, I love you. Happy birthday. I'm sorry I'm not there. This is the 2nd time round that I'm missing out. But I love you and you make me very proud. And I'll see you real soon and we'll celebrate together. Happy birthday, Raid. And with that, we'll see you on the other side. Keep watching the Pavilion on A Sports and 10 Sports. We'll be back after the games.